کہ کوئی شخص یہ بات کہے جی دیکھو جی خدا نے تو فرشتیاں نے پر نہیں لکھے، کیونکہ ہاں مجھے یہ بات کہی گئی کہ پھر فرشتے کہیں آندے سن، میں کہ سپرمین سن اڈ کے آندے سن تو کہندے انہوں نے پر ہی کوئی نہیں، تو میں کہ سپرمین دے کہڑے پر نے، میں کہ سپائڈر مین ہو سکتے ہیں انج کر کے آندے ہون گے، میں کہ جویں بھی آندے سن وہ آندے سن۔ ہمیں جن کا ذکر ملتا ہے، پوری بائبل آپ کے سامنے ہے، آپ کو کہیں فرشتوں کے پر نہیں ملیں گے، کیونکہ جب ہم بائبل مقدس میں آگے چلتے ہیں ہم فرشتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نکالتے ہیں زبور 91، کیونکہ اس کے اوپر اس دن بات ہوگی نا۔ بھائی نے کہا جی زبور 91 بھی تو لکھے ہے، میں نے کہا یار میرے پاس تھے طلت بھائی بیٹھے ہوئے، تو ہم دونوں بات کر رہے تھے کہ فرشتوں کے پر نہیں ہوتے ہیں، تو ایک شخص نے کہا کہ زبور 91 تو لکھے ہے کہ وہ تجھے اپنے پروں پہ چھپا لیں گے، تو طلت بھائی 2 منٹ چپ کر کہندے یار تو بازو نہیں لکھے آیا، میں کہ نہیں بھائی دے پر ہون گے۔ تو ہم نکالتے ہیں زبور 91 اور اس کی 11 آیت کو دیکھتے ہیں، اور یہاں پر یوں مرقوم ہے، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے کیا ہو جی۔ تو بندہ ان کہتا کہ پران دا ذکر ہے، طلت بھائی ہوڑے جی کہتے اچھا میں تے ہاتھ پڑے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جب آپ لوگ کلام کو دھیان سے پڑھتے ہو تو آپ کو چیزوں کا آہستہ آہستہ سامنے عیاں ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہاں تو ہاتھ لکھے ہیں، میں نے کہا جی بھائی نے کیا ہے، تو کوئی گل نہیں، بھائی سچے ہوں گے، انہوں نے کوئی پڑھی ہو نہیں ٹرانسلیٹڈ بک شاید، پر میں کیا میں بھی ہاتھ ہی دیکھے نے، پر میں چپ کر گیا کیونکہ بھائی شاید چارے نے بحث ہوئے، تو بحث نالوں چنگا ہے کہ تسی نا اپنے سوال 10 کو سانو بھی دو، وہ ساڑی کلیسیا چ بھی ہے آن تے تہاڈے لیے بھی۔ تو بندے نے نال ہی مینوں کیا کہتا بھائی صاحب نہیں میں نے ایسے دیکھا ہے، میں نے کہا دیکھا نہیں ہونا، آپ نے ایسے نہیں ایسے ہی دیکھا ہوگا، لیکن آپ کو پر فیل ہوا ہوگا۔ تو جب ہم بائبل مقدس میں لوکا کی کتاب کو دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں نکالیں گے لوکا کی انجیل، لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 26 سے 28 آیت میں دیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل، یہاں پر بھی اگر آپ فرشتے کے بارے میں دیکھیں گے تو فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، لیکن یہاں پر بھی پروں کا ذکر نہیں ملے گا۔ فرشتہ گڈریوں کے پاس جاتا ہے لیکن پروں کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن وہ ایسے خوش ہے کہ وہ جو سرافیم کرتے ہیں قدوس قدوس، وہ خوشی سے قدوس قدوس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اب آپ بولیں گے فرشتیاں دا کی کام سی؟ فرشتے اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ببلیکل ٹرانسلیشن میں تو جو فرشتے ہیں ان کا کام ہے میسیج پہنچانا، پیغام رسائی۔ بائبل میں آپ کو جہاں 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 فرشتہ نظر آئے گا وہ پیغام پیغام اور پیغام ہی لے کے جاتا نظر آئے گا۔ اور اگر آپ بائبل مقدس میں بائبل میں آپ کو کہیں پر فرشتے کے پر کیوں نہیں نظر آتے؟ کیونکہ فرشتہ انسانوں سے انسان بنتا رہا ہے، وہ ویسا ہی رہا ہے جیسا تھا اور وہ ویسے ہی رونما ہوا ہے۔ کیونکہ جب ہم بائبل مقدس میں عبرانیوں کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 14 آیت کو دیکھیں گے، پریز عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 14 آیت، ہاللیلویہ، خدا ان کی تعریف، خدا ان کا شکر۔ عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 14 آیت، اور یہ وہ ہیں جو
खिदमत गुजार हैं। नया अहदनामा इब्रानियों बाब 1 और उसकी 14 आयत, यहां पर फरिश्तों के बारे में इब्रानियों की किताब में लिखा है, लिखा हुआ है, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती है। भेजी जाती हैं। करोबियों को तो खुदावंद कहीं भेज नहीं रहा, सराफीन को खुदावंद कहीं भेज नहीं रहा, लेकिन फरिश्तों को भेज रहा है कि जो मेरी मराज जमीन पर है, जो लोग मेरे जमीन पर हैं, जो मेरे नबी जमीन पर है, जो मेरे बेटियां जमीन पर है, जो मेरे बेटे जमीन पर है, इन तक मेरे कलाम को पहुंचा। और अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो नूर को देख के ही इब्राहिम झुक जाता है कि मेरे पास फरिश्ते आए, उन्होंने पैर पूर धोंदा है। अगर आप सदूम और अमूरा को देखते हैं तो वहां पर फरिश्तों इतने खूबसूरत होते हैं कि वो उनके साथ बदफेली करने तक जाते हैं। अगर उनके पर थे तो उन्होंने नजर नहीं आया, वो ब्लाइंड थे, अन्ने सन, कि उन्होंने पता ही नहीं लगा कि फरिश्ते ने कैसी की सोच रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में जब हम आगे जाते हैं तो हमें फिर जो 6 बाब है उसमें इब्राहिम के बारे में, इब्राहिम से जब फरिश्ते मिलते हैं तो 6 बाब में जाकर हमें फरिश्तों का जिक्र मिलता है कि वो क्या कर रहे हैं जी, पैगाम लेकर आए हैं। और किसका? खुदा का, क्योंकि उसकी बीवी हामला ना थी। इसी तरह जब हम देखते हैं इब्रानियों 13 बाब और उसकी 2 आयत को, तो यहां पर आपके सामने जो बात यहां होगी उसको गौर से देखिएगा, क्योंकि फरिश्ते आते थे लोग कहते हैं पर ने, लेकिन ये इब्रानियों फिर इसका मतलब है यहां से ये वाली आयत हटा देते हैं। हाँ, ये तो झूठ होगा ना। तो देखते हैं इब्रानियों 13 बाब और उसकी 2 आयत में, इब्रानियों उसका 13वां बाब उसकी दूसरी आयत, और लिखा है, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। फरिश्तों की मेहमानदारी की है। फरिश्तियां नहीं किवें कर लई, उन्होंने तो नजर ही नहीं आने पर ने यार बेखबरी च करके की वो भी अन्ने सन। नहीं, फरिश्तों के पर नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा। अगर आप जो इब्रानी किताब है, जो हिब्रियो है, यूनानी में लिखी हुई, अगर आप लोग इंग्लिश में देखते हैं तो कई जगह पर जो मैसेंजर्स हैं उनके लिए भी एंजल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। हमें नहीं समझ आ रही कि हम करें क्या। हम कहते लो जी, अगर बेखबरी में ही किया था तो खुदा के बंदों को ही नजर नहीं आया। इसका मतलब कि वो वैसे नहीं थे जो हम थिंकिंग करते हैं कि हमने उस दिन यहां पर यूं करके सारे फरिश्ते बैठे हुए थे, ठीक है, तो मैंने कहा फरिश्तों के पर नहीं होते, लेकिन अगर मैं इनके पर ना लगाऊं तो आप लोगों ने कहना कि बनाए इन्हें, इस गलो लगे। चीजों को समझे। खुदावंद को ना आपका डर है ना मेरा डर है कि वो उठ के ते उन्हां दा हुलिया भी ते दसण दे, वो जगह जगह हुलिया वहा रहा उन्हां दा कि वो जा रहे ने, आ रहे ने, मिल रहे ने, और वो इत्थों तक मिल चुके ने कि बेपरवाही च लिखिया कि तुसी मुसाफिर परवरी च रहे हो कि कोई बंदा मुसाफिर आया ते तुहानू पता ही नहीं लगा कि तुसी ओदी भी खिदमत कीती गए हो, फरिश्ते दी भी। हम लोग चीजों को समझने की बजाय हम इनको मिक्सअप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यार जो मैं कह रहा ना वो ठीक है, नहीं मैं किसी दी नहीं मनांगा, मैं मनांगा कलाम दी। तो अभी आप लोग कहते होंगे कि यार भाई साहब तुसी इन्नियां गल्लां कीतियां ने ते यार ਇਹ भी तो वेखिए क्या आ फर्क भी तो होवे। हाँ, थोड़ा जिहा फर्क वेखिए तो क्यों ना सी लास्ट आयत कढ़ांगे, मुकाशवा 5 बाब ओदी 11 आयत। जैन भाई जब इसे पढ़ेंगे ना
तो प्लीज इसको थोड़ा स्लो करके पढ़ना है, ठीक है। 5 बाब और उसकी 11 आयत को देख। नाम वाहिद के लिए इस्तेमाल किया गया। तो वहां लिखा है कि जाओ तुम बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। मतलब वो तीनों चीजें एक हैं, नामों नहीं लिखा हुआ। अब यहां पर मैं तीनों चीजों को, बल्कि 4 को अलग आपको दिखाऊंगा। फिर भी अगर समझ ना आए तो वो बंदा फिर मेरी नजर च फारग है, उसकी वजह है क्योंकि वो जानना ही नहीं जानता। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। जैन भाई, लिखा हुआ है 11वीं आयत में, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उस पहली चीज, दूसरी और उन जानदारों, दूसरी चीज, और बुजुर्गों के तीसरी चीज, गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की चौथी चीज, आवाज सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। जानदारों के बारे में मैंने आपको बताया, हिजकियल को देखेंगे, आपको जो हवाले दिए हैं उनको देखेंगे। वहां पर इन जो चेरुबिम्स जिनको हम कहते हैं, करोबिया जिन्हें कहते हैं, इन्हें जानदार का लफ्ज भी दिया गया है। और अगर करोबिया फरिश्ते हैं तो फिर फरिश्ते अलग से क्यों लिखे गए हैं? और तख्त का जिक्र क्यों है? क्योंकि उसके पास सराफीम है। बुजुर्गों का जिक्र क्यों है? क्योंकि बुजुर्ग भी अलग चीज है। सराफीम अलग ने, करोबिया अलग ने, जानदार अलग ने, तख्त अलग है। और फरिश्तों का जिक्र है कि वो लाखों की तादाद में है। अभी भी अगर हमें यह लगता है कि यार ये सारी चीजें सेम है, तो फिर इन चीजों के ऊपर बहस करना ही फारग है। क्योंकि यहां पर तो वो लिख ही नहीं रहा ना, लिखा कि वो लाखों की तादाद में। यहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि बुजुर्ग, जानदार और फरिश्ता था ही हो जाता ना, मतलब तीन नई चीजें एक बन जाती शायद। हाँ, नाम और नामों, जिस तरह मैंने आपके साथ डेफिनेशन क्लियर की है। तो यहां पर ये चारों चीजें अलग पड़ी हैं। तख्त अलग से पड़ा है क्योंकि वहां सराफीम है। जानदार अलग से है क्योंकि हिफाजत करने वाले हैं। बुजुर्ग अलग से है क्योंकि हम बुजुर्गों से सुनते आते हैं, हम नबियों से सुनते आते हैं। और फरिश्ते अलग से हैं जो उसके हजूर खड़े हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हो सकता है, जहां तक मैंने स्टडी की है, जहां तक मैंने देखा है, मुझे नहीं कहीं पर भी फरिश्तों के पर नजर आए। अगर किसी को मिले तो इट्स गुड फॉर मी कि शायद मैं भी स्टडी करूं, मुझे भी मिल जाए। लेकिन मैं भी आपसे एक ही बात बोलूंगा, बाइबल जो है ना, वो कई जगह पर कुछ लोग कहते हैं खामोश है, पर मैं सोचता हूं कि सिर्फ और सिर्फ बाइबल को ना थोड़ा सा पंजाबी च कहांगे फोलन दी लोड़ है। मिल जाएगा किते ना किते, सानू कोई ना कोई चीज लभ जाएगी। अज भी दुनिया च जिन्हें दे मेरे तो भी ज्यादा वाल चिट्टे ते उमरा बहुतियां ने, वो हाले भी बाइबल दे विचों का के की लभदे फिरदे। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग खुदा के कलाम में से इस वक्त बड़ी बातों को ढूंढ रहे हैं। तो अच्छा है कि हम सब भी खुदा के कलाम में से सीखना शुरू करें। तो अच्छा है कि हम खुदा के कलाम को जिंदगी में वेलकम करना शुरू करें। तो अच्छा है कि हम उन बातों को देखें जो कलाम हमसे बयान करता है। उन बातों को मत देखें जो जुबानी कलामी सुनी बातें। आपके साथ अगर कोई सवाल शेयर होता है तो वो जरूर किया करें, ताकि आपके सामने हवालों के साथ बात की जाए। आपके साथ सिर्फ मैं यही ना, जिस तरह हमने शुरू से ही, जब मैं छोटा सा था ना, तो वडिया कन्वेंशन च एक लफ्ज बोले नहीं, चलें जी हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है, लिखा है, सानू पता ही नहीं कितने लिखे। बस वो भाई साहब ने क्या, फिर भाई साहब ने क्या, भाई साहब तो फिर पादरी साहब, वो ऐसी गल चली, किसी ने पता ही नहीं लिखा कि नहीं लिखा। जिस तरह के हमने 3 पेशन गोइयां वो आजमाइशें देखी हैं बाइबल में कि वो तेरे,
तू यहां से जंप कर दे, तुझे वो अपने हाथों पर उठा लेंगे। तो 91 ज़बूर में यही लिखा हुआ है ना उसके बारे में कि वो जब जंप करेगा वो तुझे अपने हाथों पे उठाएंगे, पत्थर से ठेस भी ना लगेगी। यही चीजें हमें समझने की जरूरत है। क्या आया हम अभी तक वैसे ही हैं कि जी वो स्पाइडरमैन वांगू आया या सुपरमैन बन के? हाँ, या वो बंदा की क्या जाए वो कोई और तरीका सी उदे उड्डन दा, थोर वांगू थोड़ा कमांदा सी है। ये चीजें सोचने वाली नहीं है। ये चीज सोचने वाली है कि उनके काम क्या थे। हुलिये की बात की, हुलिया भी जाहिर हो गया। लेकिन मैं आज आपको बात बताऊं, अगर आप सब लोग जितने यहां बैठे हो खुदा के कलाम की मुनादी करते हो ना, तो आप सब उन्हीं एंजल्स में शुमार होते हो, उन्हीं फरिश्तों में शुमार होते हैं जिनका जिक्र खुदा बाइबल में करता है। क्योंकि आप खुदा के पैगाम की जो रसाई है, जो खुदा के कलाम की मुनादी है, वो दूर तक करते हैं और खुदा इसी चीज को पसंद करता है। अगर कोई आपसे सवाल करे, आपको जवाब ना आए, ਇਹਦੇ ਚ कोई शर्मान वाली गल नहीं होती, बल्कि अगले को हाँ शायद मैं सुनिया है, हवाला याद नहीं, मैं तेन जरूर दसांगा, मैंने एक अद्धे दिन का मौका दे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि कलाम हम पर जो बातें शो करता है वो हम सबकी सोचों से ज्यादा है। कलाम जो बातें हम पर अयां करता है वो हमारे ख्यालों से ज्यादा है। हालेलुया। सो आप सबको आज जो बातें मैंने कलाम में से बयान की हैं, जो खुलासा मैंने कलाम में से बयान किया, समझ आई है? समझ आई है? समझ आई है? वेरी गुड। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। प्रेज।